तो उस प्रशिक्षण को हल्का मत जानो जो मसीह में तुम्हारे लिए रखा गया है। If you want to live a victorious life till the end, do not despise the training that has been kept for you in Christ. उस वचन को हल्का मत जानो जो हर रविवार को परमेश्वर का आत्मा आपके और आपके बच्चों के लिए भेजता है। Do not despise the word that the Spirit of God sends for you and for your children every Sunday. जो हमारे कवच है वो पूरा डिफेंसिव कवच है। Our उद्धार entire, का टोप, धार्मिकता की झीलम, सत्य की बेल्ट, सुसमाचार के जूते, ये सब क्या है? ये कवच है। our entire armor is protective. The helmet of salvation, breastplate of righteousness, the belt of truth, the shoes of gospel, they are to protect you. अब सोचो आप लड़ाई में चले गए केवल कवच पहन के मगर कोई हथियार नहीं है तो आप मार खा रहे हो। अब लग नहीं रही आपको मगर मार तो खा रहे हो। Now imagine you go to the war wearing a protective gear, your armor, you do not have any sword, any offensive weapon with you, so you will be just taking hits upon hits. तब तक मार खाते रहोगे जब तक हथियार नहीं उठाओगे। You will keep on taking hits until you take up your weapon. और बाइबल कहती है हमारे पास भी हथियार हैं। And the Bible says we also have weapons. हमारे पास आत्मा की चोखी और पैनी दो धारी तलवार है। We have the sharp two-edged sword of the Spirit. वही तलवार जो मेरे यीशु के मुंह से निकलती है वही तलवार उसने आपके और मेरे मुंह में भी डाली है। The same sword that comes out of our Lord Jesus' mouth, the same sword God has given to us, to you and me. अलग नहीं, It's not a different sword. वही तलवार दी है। It's the same sword. What is important for English? Grammar, reading or Not a different sword. वही तलवार दी है। It's the same sword. आपने देखा है, अच्छा मैं फिर से आपसे एक उदाहरण, यहाँ पे कितने लोगों ने गिटार बजाने की कोशिश करी? मुझे हाथ दिखाओ अगर How कभी many से- people tried to play guitar हाँ? or tried to learn it? मगर बहुत मुश्किल था तो आपने छोड़ दिया। मुझे दिखाओ हाथ। But it was so difficult that you left it. How many people did that? एक व्यक्ति यहाँ पे आ सकता है और बहुत बढ़िया गिटार बजा रहा है, आपको वाह कितनी बढ़िया आवाज निकल रही है इस गिटार से। One person can come here, play the guitar, and you say, "Wow, what a beautiful sound is coming और out." फिर एक from that." दूसरा व्यक्ति आए और सेम गिटार को पकड़े और करे झड़ंग बड़ंग झड़ंग बड़ंग। And then another person can come and make absolute nonsense सेम गिटार है from the same guitar. मगर एक प्रशिक्षित है, एक प्रशिक्षित नहीं है। But one is trained and the other is not trained. वही तलवार यीशु ने आपके मुंह में भी दी है। अब आपको सीखना है ये जो तलवार है, हाउ यू कैन यील्ड दिस वेपन, इस हथियार का आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हो आत्मिक गढ़ों को ढाने के लिए। The same sword the Lord Jesus has now put in your mouth, He has given it to you. You can learn how to use this sword to bring down strongholds. अगर आपकी लड़ाई हो रही है और आत्मा की तलवार हमारे मुंह से है, If you are in the middle of a warfare and the sword of the Spirit is coming out of our जो mouth, हथियार है वो तलवार है, The तो अब weapon- मुझे बताओ कौन है जो नहीं चाहता कि आप वो तलवार मुंह से निकालो? if your weapon is the Come on, talk sword, to tell me. me, who doesn't want? कौन? शैतान, क्योंकि वही है जो नहीं चाहता कि परमेश्वर का वचन आपके मुंह पे हो। Because it is the devil who doesn't want that the word of God will be in your mouth. ओके, आज मैं आपको वचन से दिखाऊंगा जो आत्मा की बातें हैं। बाइबल कहती है जो शारीरिक मसीह है ना, जो शारीरिक ईसाई हैं, उनको समझ में नहीं आएंगी ये बातें, क्योंकि these things are spiritually discerned। But the things of the Spirit cannot वो be लड़ते discerned. हैं, कहते हैं ये न्यू एज टीचिंग दे रहे हैं, ये वचन की घोषणा कर रहे हैं। अरे तो किसकी घोषणा कर रहे हैं? वचन, परमेश्वर की वचन की घोषणा कर रहे हैं। They said this is new age teaching, you're declaring the word. What are we declaring? The word of God. ये शैतान से है। They यानी from the devil. शैतान अब परमेश्वर का वचन लोगों के मुंह में डाल रहा है। वाह, हालेलुया। They said this teaching is from the devil. Okay, so now the devil is putting God's word in people's mouth. Wow. मतलब वो कह रहा है ये लो तलवार और मारो मुझे। So the devil is saying, take your sword and hit me. सोचो ध्यान से, कौन है जो नहीं चाहता कि तलवार आपके मुंह पे रहे? धर्मी ईसाई बन के रहो, रीति रिवाज में रहो, क्रिसमस में जाओ, गुड फ्राइडे में जाओ, ईस्टर में जाओ। Think carefully who doesn't want the sword to come out of your mouth. Who would want you to be a religious Christian, do all rituals, go for Christmas, Easter Sunday, do all that. मगर ये टीचिंग नहीं, But don't take this teaching. क्योंकि ये उसका, और अब तो भैया शुरू हो चुका है। इंडिया में बच्चा बच्चा परमेश्वर का वचन की घोषणा कर रहा है। And now it has started. Every child in India will declare the word. और ये रुकने वाला नहीं है। And this is not going to stop. हालेलुया। Hallelujah. ओके, अब
मैं चाहता हूं आप ध्यान धरकर सुने, अगर किसी को डाउट है ये तो। यिर्मयाह 1:9, यिर्मयाह 1:9, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ। Then the Lord put forth his hand and touched my mouth. यहोवा ने क्या छुआ यिर्मयाह का? कई मसीहों का आज ये छूना जरूरी है कि परमेश्वर उनका मुंह छुए। Many believers have this need that the Lord would touch their mouth today. यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाले हैं। Then the Lord put forth his hand and touched my mouth, and the Lord said, behold, I have put my words in your mouth. कहां डाले हैं तेरे? Where has the Lord put his word? कहां डालना चाहता है परमेश्वर अपने वचन को? Where does God want to put his word? हमने लेदर की बुक में डाल दिए। We have put them in a leather book. ये जरूरी है, वरना मुंह में नहीं डाल सकते That's आप। important. और Otherwise, अगर ये लेदर की बुक में ही रहेगा but if it stays in the leather book, तो कई लोग क्या करते हैं, क्योंकि वो नहीं समझते ना, वो शारीरिक जब ईसाई तो पता करते हैं, दुष्ट आत्माओं के ऊपर ना करते हैं बाइबल, यीशु के नाम से निकल। what some people do is because they are carnal, they don't understand. They take the Bible and they hit the people that are. अरे ये हथियार नहीं है, आत्मा की तलवार है, आत्मा की, आत्मिक हथियार है, शारीरिक नहीं है। This is not the weapon, the sword, the spirit is the weapon. It's not physical. पीटो मत लोगों को बाइबल से, Don't beat people with your Bible. मुंह खोलो और वचन की घोषणा करो। Open your mouth and declare the word. ओके, अब ध्यान से सुनो। Hear carefully. देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। See, I have this day. क्यों कह रहा है परमेश्वर तेरे मुंह में डाले? ध्यान से सुनो अब आगे। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है। Why has God put his word in our mouth? It says here, see, I have this day set you over the nations and over the kingdom. जिन मसीहों के मुंह में परमेश्वर का वचन नहीं है, वो कभी अधिकारी नहीं हो सकते। Believers who do not have the word of God in their mouth, they can never walk in authority. अगर अधिकार में चलना है, अगर अधिकारी की तरह चलना है, तो परमेश्वर के वचन आपके मुंह में होने चाहिए। If you want to walk in authority, the word of God should be in your mouth. ओके, अब ध्यान से सुनो। उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। To root out and to pull down, to destroy and to throw down, to build and to plant. अब हियर दिस, ये जो परमेश्वर का वचन है ना, इसको बाइबल दो चीजें बोलती है। This word of God, the Bible calls it two things. बाइबल इसको कहती है सीड यानी बीज, और बाइबल कहती है सोर्ड यानी तलवार। It's a seed and a sword. तलवार से जो शैतान की तरफ से उसको नाश कर दो, और जो परमेश्वर के वचन आपकी जिंदगी बनाने वाले हैं